Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2nd, Kings, Farmers and Town. My dear student, in this chapter, as you know that we have completed the early states, emergence of Janpad and Mahajanpad and Mauryan Empire. We also studied about Mauryan administration and Asoka and their opportunities. We studied the Dhamma of Asoka. In my last class, I was discussed the Dhamma of Asoka. And after all, I was also taught you with the help of X Recorder the next topic, न्यू नोशन ऑफ किनशिप, दैट इज द पॉइंट 4. न्यू नोशन ऑफ किनशिप टॉपिक में हम लोगों ने कई सारी बातों को देखा था. न्यू टॉपिक है हमारा द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. The new notion of kingship. इस टॉपिक में कुछ छोटे छोटे साम्राज्यों के बारे में, कुछ छोटे छोटे राजाओं के बारे में बताया है. इसमें सब टॉपिक है चीफ्स एंड किंग इन द साउथ. चीफ्स एंड द किंग्स इन द साउथ. Chiefs and kings in the south. That is the very important things, my dear. Here I want to tell you the very important points which we have connected with that topic. कि मैंने आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में कुछ राजाओं के नाम काउंट कराए थे जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए थे. अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के कुछ राजाओं के नाम हैं. कहता है चोल, चेर, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र. ओके, क्या लिखता है? कहता है चोल, चेर, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र, इनके नाम अशोक के इंस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं. जिसमें साउथ के हम चोलों के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे. कहते हैं ये चीफ्स एंड चिफडम्स कौन से थे. एक टॉपिक है बुक में आपके चीफ्स एंड चिफडम्स. इसी के साथ हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं. चीफ्स एंड चिफडम्स. चीफ्स एंड चिफडम्स. तो चीफ एंड चिफडम्स सरदार, छोटे छोटे, और उनके छोटी सी जो रियासत के मालिक थे उनकी बात है. बट डियर, विदाउट एनी एजुकेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द स्मॉल टाइप ऑफ द रूलर्स, they were independent and they were ruling on the southern part of India. They were Chol, Cher, Pandya. They were called the chiefs and kings in south. This name and their importance we will try to understand in this topic.
माय डियर, इन चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक आप देखिए तो कहता है कि द न्यू किंगडम दैट इमर्ज्ड इन द दक्कन एंड द फर्दर साउथ इंक्लूडिंग द chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas in Tamalikam. Okay, Chola, Chera and Pandyas किस रीजन में थे? तमालिकम रीजन में। तमालिकम रीजन में nowadays Tamalikam region is widely spread from where? 3 states, especially Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. Tamil Nadu and some part of the Karnataka also. लेकिन कर्नाटका का एरिया कम है। मेनली 3 रीजन्स में तमिलकम रीजन जिसको कहते हैं संगम लिटरेचर में, तमिलकम प्रदेश के रहने वाले लोगों का नाम काउंट करते कहते हैं कि ये लोग तमिलकम प्रदेश में रहते थे। चोल, चेर, पांड्य क्या थे ये? कहता है चीफ्स एंड चिफ्टन्स, छोटी छोटी इनकी सरदारियां थी, छोटे छोटे इनके क्षेत्र थे, इन पर ये लोग शासन किया करते रहे होंगे। योर एनसीईआरटी बुक क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट दैट एट देयर इंपॉर्टेंस। तमिलकम which included part of the present day Andhra Pradesh and Kerala in the addition to Tamil Nadu. That region is called Tamilikam regions. Proved to be the stable and the prosperous. कावेरी रीजन अत्यंत ही प्रॉस्परस था। कावेरी नदी का डेल्टा उस समय का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक गिना जाता था। My dear, we know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam text contained poems describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources. My dear student, about Chol Cher Pandya, that was the great source to know about their history, that was Sangam literature. Sangam first, Sangam second, Sangam third, that was the council which was happened in time to time. The different type of poems, different types of the hymns that was compiled by the great authors and poets in the Sangam literature. Puttu Pattu, Etutoke, Mari Mekhalai, Silappadikaram, and my dear, that was the great era in which the great book that was compiled लिखी गई, और उन बुक्स में हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। Okay, let us come and try to understand about the chiefs and chieftains. Chief और chieftains कौन थे? Without any hesitations, you have to understand that a chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary. He derives support from the king folk. His functions may including the performing special rituals, leadership in warfare, and arbitrating disputes. He receives gifts from his subordinates and often distributes these among his supporters. Generally, there are no regular armies and officers in chiefdoms. My dear, chief कौन थे? चीफ वो लोग थे जो जिनका पद, जिनकी पोस्ट आनुवांशिक भी हो सकती थी और आनुवांशिक नहीं भी हो सकती थी। व्हाट डू मीन बाय आनुवांशिक? हेरिडिटरी। देयर पोस्ट वाज मे बी हेरिडिटरी, मे नॉट बी हेरिडिटरी। दे हैड नो प्रॉपर आर्मीज। विद द हेल्प ऑफ देयर किंग फॉल्क, देयर फैमिली मेंबर्स, he collected the army and he looted some area. He received gift and distribute this gift among his own people.
माय डियर, इस तरह से छोटे छोटे राज्य दक्षिण में बने और इसी तरीके का राज्य हमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी दिखाई देता है। हमें छोटे कुछ ऐसे राज्य मिलेंगे जो लिटिल मॉरियन पीरियड में आएंगे। अब यहां से शुरू होगा एक नया फेज इतिहास का जो इस बुक में है। एक्चुअली विदाउट एनी एजुकेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक लंबा इतिहास, एक लंबा कालक्रम आपको पढ़ने को। माय डियर, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट मौर्यन एरा in Indian continent. Post-Mauryan era, after that, what we discussing in the starting of this class, Chol, Cher, Pandey, chief and chiefdoms, and after all we have to understand about that some other dynasties which play a very important role in the Indian political system, in Indian history also. They were Satavahan and Kusanas. सातवाहन, कुसान एंड सकाज आल्सो। सको की शाखा, कुसाणों की शाखा और सातवाहनों। हमें 3 और लेटर मौर्यन जो कम्युनिटी थी, जो एम्पायर थी, जो डायनेस्टी थी, उनके बारे में जानना है। तो अब यहां से शुरू होता है लेटर मौर्यन पीरियड। लेटर मौर्यन पीरियड क्या टाइमिंग है लेटर मौर्यन पीरियड का? बिना किसी हेजिटेशन के आप लिख सकते हैं 185 टू 320। 185 टू 320 एडी। ओके, ये डेट है। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बाद के राजवंशों के बारे में। आइए इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। चीफ एंड चिफडम्स हम लोगों ने पढ़ लिया, चेर, चोल, पांडे के बारे में हमने देख लिया, तमिलकम रीजन्स के बारे में देख लिया, और अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत, द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप के अंतर्गत, कि वो जो राज्य है जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी भारतीय इतिहास में, उनके बारे में कौन कौन है। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, लेटर मौर्य पीरियड 184 टू, कब तक मैंने कहा 184 टू 320 सी। टू 320 सी के बीच भारत में स्पेशली 3 प्रांतों में ओके, ये रीजन था इंडिया का मॉडर्न। कहता ये रीजन, जो ये इलाका था, थोड़ा और दूर तक कर लेते हैं। सातवाहन, सातवाहन रूलर्स, जो ये रीजन है,
कुषाण शासक है। और जो ये बीच का क्षेत्र पड़ेगा आपका, ये यहां पे शक शासकों का आधिपत्य है। ये कब के हैं? ये कंडीशन 184 to 320 सी, जब भारत में मौर्यों का साम्राज्य खत्म हुआ और छोटे छोटे अलग राजवंश की स्थापना हुई। लिटिल मौर्य पीरियड में इवन इन दोनों के पहले कुछ और राजवंश भारत पर शासन किए, जैसे सुंगा, काणो, सुंग, कानो, वाकाटक, सातवाहन, ये लोग शासन किए। लेकिन बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो कुषाणों के बारे में पढ़ना है, सातवाहनों के बारे में पढ़ना है और शकों के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या कहता है आपका बुक। बहुत ही आसानी से इन चीजों को एक्सप्लेन करता है। वहां पे कहता है कि वी नो अबाउट दीज सिस्टम फॉर द वैरायटी ऑफ सोर्स which gives us information about these rulers. Many chiefs and kings, including the Satvahan, who ruled over the part of the western and central India, 2nd century BC to 2nd century CE, and these Sakas, a people of Central Asian origin, who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenue from long distance trade. Their social origin were often obscure, but as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired power, they attempt to claim social status in the variety of ways. My dear student, in the third chapter, we will discuss a next a topic which is very important topic, the non-Kshatriya king. The non-Kshatriya king, where we discuss the Sunga, they were Brahmins. These rulers were Brahmins. आप इन चारों को हम कह सकते हैं, ये क्या थे? ये ब्राह्मण्स किंग थे और ये सब नॉन क्षत्रिय किंग थे। नॉन क्षत्रिय किंग। इवन जो कुषाण है, कुषाणस और सका, हुनास, ये भी क्या है? नॉन क्षत्रिय किंग। NKK शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं नॉन क्षत्रिय किंग है। ये लोग भी नॉन क्षत्रिय किंग है। इस टॉपिक को हम आपके थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। And how can they establish himself as a king in the mind of, in the heart of their own people? No doubt to say that they adopted a very unique way. क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने अपने अंदर देवत्व का आरोपण कर दिया। A divine king. नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक का, a divine king. और डिवाइन किंग किसके बारे में बात कर रहा है? कुषाणों के। कौन थे कुषाण? आउटसाइडर। क्या किया इन लोगों ने? टाइटल ली सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड का टाइटल इन्होंने लिया। इन्होंने अपनी मूर्तियां स्थापित की मथुरा के माट नामक स्थान पे, और अफगानिस्तान में पुरुषपुर नामक स्थान पे इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने देवकुल की स्थापना की।
देवताओं की तरह राजाओं की मूर्तियां बनाई गई। इन मूर्तियों से उन्होंने अपने देवत्व को प्रूव किया, स्थापित करने का प्रयास किया। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड माय डियर, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैटर दैट द आउटसाइडर दे इम्पोज हिमसेल्फ द डिवाइन पावर, दे ट्राई टू प्रूव दैट कि हमारे अंदर क्या है, दैवत्व गुण है, वी आर द सन ऑफ गॉड। दिस टाइटल टेकन किससे, चाइनीज रूलर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टाइटल देवपुत्र रखा। चाइनीज रूलर्स की टाइटल्स थी स्वर्गपुत्र, सन ऑफ हेवन। इसी तरीके से लोगों ने अपनी टाइटल रखी देवपुत्र। इस तरह से उन लोगों ने अपने अंदर देवत्व का आरोपण किया। मूर्तियां क्यों बनी, इसके पीछे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इतिहासकार इसके बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखिए बुक क्या लिखता है आपका, कहता द डिवाइन किंग वन मीन्स द क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज द आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डिटीज। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशानाज, 1st century BC to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from the Central Asia to northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and the textual traditions. The notion of kinship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. आइडियल कुशाणों के बारे में जानने के लिए इट इज वेरी बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कुशानास इज देयर इंस्क्रिप्शंस एंड देयर कॉइन्स। दे वर आउटसाइडर्स नो डाउट, but they controlled their cultural aspects. They merged himself in the Indian culture. भारतीय संस्कृति में उन्होंने अपने को मर्ज कर लिया। उनके सिक्कों पे शिव की उपासना करते हुए उनके टाइटल लिखे गए, महारजस रजति रजस सर्वलोगस ईश्वरस माहेश्वरस बिम कदफिसस, उपाधि लिखता है। कुशाण शासक, भारत के वो पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय सीमा के अंतर्गत, इंडियन बाउंड्री के अंतर्गत सोने के सिक्के चलवाए, गोल्ड कॉइन्स चलाया। ये सोने के सिक्के अत्यंत ही प्योर थे। सोने के सिक्के प्योर क्यों थे? क्योंकि कुशाणों के समय कुशाणों ने चिनांसुक मार्ग पे, सिल्क रूट पे कंट्रोल रखा। उन्होंने कैस्पियन सागर तक जाने वाले रास्तों पे नियंत्रण रखा। रोम से होने वाले व्यापार को उन्होंने अपने नियंत्रण में रखा। इसलिए भारत से होने वाला जो व्यापार था रोम की तरफ, वो भारत के पक्ष में था। प्लिनी लिखता है कि जो व्यापार भारत से रोम को होता था, उस पर रोम को काफी नुकसान हुआ। 55 करोड़ सेस्टर्स प्रति वर्ष हजारों नावों में भर के भारत आते थे और भारत से विलासिता की वस्तुएं रोम की तरफ जाते थे। इस बात का उल्लेख प्लिनी लिखता है। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। गोल्ड कॉइन चलाने का, रोम से बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भारत आए, कुशाणों ने प्योर गोल्ड कॉइन चलाया। बट हियर आई वांट टू क्लैरिफाई दैट की द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्टिनेंट, दैट वाज द इंडो ग्रीक्स। Northwestern region, the Indo-Greeks, they were the first rulers who introduced the gold coins. Diodotus first and Demetrius first. And one more very important name, that is Menander. इनके सिक्के आए। इन्होंने खरोष्ठी और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया। इसी तरीके से कुशाणों ने भी सोने के सिक्कों का प्रयोग किया, जो कि रोमन सिक्कों के समान ही वजन वाले थे। आई होप यू हैव रिमेंबर आई टॉट यू इन क्लास 11th हिस्ट्री denarius and solidus, that was the coins which was very famous in the Roman Empire. Their weight is similar. The coins which is introduced by the Kushana in Indian continent, that was similar. So that's why I am saying the coins are very pure. And as far as the matter of gold coins, here 3 questions arise. 3 प्रश्न यहां पे उठते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में कौन चलवाया? तो उसका आंसर है इंडो ग्रीक्स।
भारतीय सीमा के अंतर्गत सोने की सिक्के चलाने वाले लोग जो अत्यंत शुद्ध थे, कुषाण, बिमकट फिसस या बिमकट फाइसेस, और अधिकांश संख्या में, अधिक मात्रा में भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? तो इसका आंसर होता है गुप्तों ने, गुप्ता डायनेस्टी ने। तो यहां पे हमें एक लंबा इतिहास दिखाई देता है। तो हमें अभी कुषाणों के बारे में बुक आपका लिखता है कि बाय द 4th century there is evidence of large state including the Gupta empire, many of these dependent on सामंत। अब यहां से गुप्तों के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालता है, लेकिन गुप्तों के इतिहास को पढ़ने के पहले हमें सातवाहनों के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सातवाहन रूलर्स। माय डियर, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा। सातवाहनों का शासनकाल, ये रीजन सातवाहन कौन थे? मैंने आपसे कहा अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा कि सातवाहन वो लोग थे जो कबायली समाज के रहे होंगे, और फिर उन लोगों ने अपने को एक समृद्ध राजवंश मान लिया होगा, अपने को ब्राह्मण कहा, उन्होंने अपने को क्षत्रिय नहीं कहा। सातवाहन की टाइटल मिलती है आंध्र सातवाहन, वो अपने को आंध्र सातवाहन कहते हैं। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, सातवाहन अपने को कहते हैं। और साथ ही साथ पुराणों में आंध्र सातवाहन इनके नाम बताया गया है। अंतिम कड़व शासक सुशर्मन जो 13th BC में था, 13th BC में जो कण्व राजवंश का अंतिम शासक था, कण्व, ये कण्व डायनेस्टी का, कौन? सुशर्मन। इसकी हत्या करके सिमुक गद्दी में बैठा। ये आंध्र सातवाहन का फाउंडर था। कौन? यही सिमुक। जो कड़वों का सेनापति था, कड़वों के राज्य में एक छोटा सा आर्मी जनरल कमांडर की तरह था। उसने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के अंतर्गत 1st century BC से लेकर 3rd century BC तक लगभग 400 वर्षों तक कुल 30 शासकों ने शासन किया। 400 years, near about 30 kings they ruled on that area। इन क्षेत्रों पे उन लोगों ने शासन किया। सातवाहन अपने को यूनिक ब्राह्मण कहते हैं। एक ब्राह्मणा गौतम सातकर्णी जो 23वां शासक था, एक्सट्रीमली सॉरी, सातवाहन जो यूनिक ब्राह्मण था, ये अपने को अपने टाइटल को बताते हुए लिखता है कि खखरात वश निरवशेष करस, नासिक प्रशस्ति में उसके बारे में कहता है कि क्षयरातों का निरवशेष करस, उनको समूल नाश कर दिया। शक यवन पहलव निसूदनस, शकों का, यवनों का, पहलों का विनाश करने वाला। तीन समुद्र तोय पीत वाहन, 3 समुद्रों के जल का अपने घोड़ों को पान कराया। 3 समुद्र तक उसके घोड़े पहुंचे, उसकी विजय अभियान 3 समुद्रों तक पहुंच गया। और अपने को अद्वितीय ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण की टाइटल देता है। गौतम सातकर्णी ने शकों की एक शाखा क्षयरातों में नहपान को पराजित किया। नहपान के अधिकांशतः सिक्कों को उसने एक बार पुनर्मुद्रित करवाया। जोगलथंबी से जो निधियां मिली
उसमें पुनर्मुद्रित और पुनर्टंकित उसके द्वारा सिक्के हैं। तो ये सातवाहनों का इतिहास था, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। माय डियर, सातवाहनों के इतिहास को अभी समझना बाकी है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसे पुनः जारी रखेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।